क्लास आज आपकी लाइक 4 से लेकर 4:30 तक एक क्लास है एंड देन आपकी जो इस्लामियात की क्लास है वो आई थिंक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो मैम वुड नॉट बी टेकिंग योर क्लास. I would be taking that class from 5 to 5:30. So you people have to join it again. Let us just talk about today's discussion. We are going to talk about poetic devices today. अच्छा, पोएटिक डिवाइसेस हम उन पोएटिक डिवाइसेस से स्टार्ट लेंगे जो लाइक आप वालेकुम सलाम. अच्छा जैसे आपने जो पेपर्स मुझे भेजे थे काइंडली वो आप दोबारा भेज देना, ठीक है, चेकिंग के लिए. आई नो कि वो काफ़ी डेज से जो है वो पेंडिंग पर चल रहे हैं बट आई वाज सो मच ऑक्युपाइड एंड बिजी इन 9th and 10th एग्जाम्स. तो आज मुझे भेज देना और इंशाल्लाह मैं आज चेक करके आपको रिटर्न कर लूंगी, ठीक है. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले. अच्छा, so metaphor and extended metaphor is the first poetic device basically जिससे हम आज start लेंगे. So do you people have any idea about the difference between metaphor and extended metaphor? Plus metaphor basically um, already you people must have, yes, without use of as or like, and basically this is a this is a this is a figure of speech that makes a direct comparison. Direct comparison, ठीक है. As Zakia has told us that it's basically a figure of speech that makes a direct comparison between two unlike things. ये आपका अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि like things होते हैं या unlike things होते हैं. So you should know कि they are unlike things without the usage of like, without the usage of like or as, ठीक है. So this is basically the definition of metaphor. If we go through its example, so just suppose अगर हम ये कहें कि the this world is like a stage, ठीक है. और अगर मैं ये कहूं कि this world is a stage, ठीक है. So I have written two different examples in front of you. अब जो the first sentence है this world is like a state, basically class it's a statement that was given by Shakespeare, ठीक है. He was of the view कि जितने भी human beings हैं like वो आते हैं like they come into this, they enter into this world and they perform their different actions, ठीक है, according to the plans and their preconceived destiny and then they leave the world. तो एक बेसिकली एक ड्रामा होता है इस दुनिया में जो हम बेसिकली इसको गो थ्रू करते हैं. तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट सेंटेंस को देखें, सो वी आर यूजिंग लाइक, सो इट मींस दिस इज अ सिमिली. एंड द सेकंड वन मतलब हम दुनिया लाइक वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, द वन इज वर्ल्ड एंड द अदर वन इज बेसिकली द लाइफ. अब वी आर यूजिंग द वर्ड like, so it becomes the example of a simile. In the second sentence हम directly world को stage कह रहे हैं. like ऐसा नहीं है कि world जो है वो एक literal meaning में कोई stage है, बल्कि अगर इसके deeper meanings को हम analyze करें, so it means कि we perform different actions over here. Some people are feeling happy, some are sad, some are satisfied, some are not satisfied from their life, just like the actors in any type of drama or any type of play or any type of movie, ठीक है. So now we are not using any type of like or as in this specific sentence, so it means that it becomes the example of a metaphor. Now coming towards another part of the metaphor, that is extended metaphor. Let me set the camera. ओके क्लास, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अच्छा, हम देख रहे थे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मेटाफर का, वो है एक्सटेंडेड मेटाफर. अब जो क्लास आपकी पोएम है एंड दैट इज इन योर टेक्स्ट बुक द डार्कलिंग थ्रश, बेसिकली that is also the example of extended metaphor. अब extended metaphor में we
लाइक लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू इट्स डेफिनेशन, के नहीं, डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही आपके पेपर में डेफिनेशंस लाइक वो आपसे किसी भी एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछते, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है। अच्छा, extended metaphor class. Extended metaphor basically is a type of a metaphor that is developed over several lines. मतलब कि ऐसा टाइप है मेटाफर की, एक ऐसी टाइप है मेटाफर की जो सिर्फ एक सेंटेंस में ना हो। मतलब कोई एक, लाइक देयर आर 4 to 5, जस्ट आई वुड बी राइटिंग एन एग्जांपल एज वेल। मतलब कि आपके पास 4 to 5 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और वो सेंटेंसेस एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन हर सेंटेंस में हमारा मेटाफर यूज हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज अगर हम ये कहें कि लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है। वी ट्रेवल थ्रू रफ एंड स्मूथ रोड्स, ठीक है, फेस स्टॉर्म्स एंड सनशाइन। अब देखें, ये आई हैव रिटन 3 डिफरेंट sentences, बट these sentences, the topic of the title basically of all these sentences is same, ठीक है। मतलब कि हम लाइफ को बेसिकली डिस्कस करें। फर्स्ट पे हम कह रहे हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ अ जर्नी। सेकंड में हम कहते हैं कि जहां वी फेस सम गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, ठीक है। रफ का मतलब होता है लाइक सम सॉरी बैड थिंग्स, ठीक है। एंड स्मूथ मीन्स के लाइक व्हेन यू आर नॉट फेसिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, ठीक है। एंड देन वो अगेन उसी का मतलब है कि हम कभी लाइक हम अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स। तो मतलब कि इन सारे सेंटेंसेस का या हो सकता है आपको स्टैंजा भी गिवन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटेंसेस में ही। लेकिन उस स्टैंजा के 4 लाइंस या किसी भी इस तरह से एक पैराग्राफ टाइप अगर गिवन है, उसका हर सेंटेंस में अगर मेटाफर यूज हुआ है और वो मेटाफर बेसिकली एक ही थीम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ये तमाम सेंटेंसेस दैट आर इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट लाइफ। थीम तो एक है ना, ऐसा तो नहीं है कि लाइक एक सेंटेंस लाइफ के बारे में बता रहे हैं, दूसरा हमारे ड्रेसिंग के बारे में बता रहे हैं, तीसरा हमारे स्कूल के बारे में बता रहे हैं। दे आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द सेम थिंग, दैट लाइफ, ठीक है। सो अब लाइफ के लिए डिफरेंट मेटाफर्स यूज टू मैंने, एक सफर है, ठीक है, जहां हमारी अच्छे दिन भी हमें फेस करने होते हैं, बुरे दिन भी फेस करने होते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन हम कभी हम होप होप लाइक सनशाइन बेसिकली होप को रिप्रेजेंट करता है, कभी हम नाउमीद होते हैं समहाउ। सो ये तमाम बेसिकली यूसेज है मेटाफर की। अब दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। यस यस वाइजा, ठीक है। और आप लोगों की जो पोएम है क्लास द डार्कनिंग ट्रस्ट, ठीक है, उसमें भी एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है। बेसिकली पोएट वाज टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और उन्होंने बेसिकली वो 19th सेंचुरी की जो डेथ थी एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर सेंचुरी बेसिकली, वो डिफरेंट एस्पेक्ट से उन्होंने रिप्रेजेंट की। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्ड अबाउट दैट द वेदर सराउंडिंग हिम इज नॉट गुड, ठीक है, पीपल हैव मूव टूवर्ड्स देयर होम, ठीक है। मीन्स के पीपल सारे लोगों ने अपने कल्चर भूल चुके हैं, एक मेटाफर यूज हुआ था। फिर ब्रोकन लायर्स, जिसमें ये कहा गया था कि पीपल आर नाउ नॉट यूनाइटेड, ठीक है, एक और मेटाफर उन्होंने यूज किया था। जस्ट कि वो कल्चर के बारे में बात करना चाह रहे थे, एंड ऑफ द सेंचुरी के बारे में बात करना चाह रहे थे, और उन्होंने डिफरेंट मेटाफर्स वहां यूज किए थे, ठीक है। तो दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर एज वेल। समझ आ गई क्लास? जल्दी से बताएंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, वी हैव 3 डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस जिसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। द फर्स्ट वन इज रेपिटेशन। अच्छा, सिमिली और पर्सनिफिकेशन उनको मैं टच नहीं करी क्योंकि वो मोस्टली इजी भी हैं और आप लोग को समझ भी आती हैं, ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों को नहीं आते जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, हमने वो करने। द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेन। अब क्लास इन तीनों पोएटिक डिवाइसेस में ना, ठीक है, सिंपल अगर मैं आपको इन सिंपलेस्ट वर्ड्स आप लोगों को समझाऊं,
तो इन like in all these three poetic devices we use the words that are generally repeated, the phrases that are generally repeated, ठीक है, कोई ना कोई फ्रेज या कोई ना कोई वर्ड बेसिकली रिपीट हो रहा होता है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। अगर हम इनकी डेफिनेशंस पर जाएं तो हम कह सकते हैं कि रिपीटिंग वर्ड्स, अभी हम एग्जांपल्स को भी गो थ्रू करेंगे। रिपीटिंग वर्ड्स, ठीक है, एनीवेयर मतलब कहीं भी, अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी भी, जरूरी नहीं है सेंटेंस में, किसी भी स्टैंजा में या किसी भी पैराग्राफ में समहाउ अगर अगर कोई भी कहीं भी कोई भी वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेपिटिशन। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे। अच्छा, ये बिगिनिंग में भी हो सकता है रिपीट, लाइक स्टार्ट में भी रिपीट हो सकता है, मिडल में भी रिपीट हो सकता है, एंड में भी रिपीट हो सकता है। एनाफोर अगर हम देखें तो ये रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज होती है, बट एट द बिगिनिंग। और इसके लिए लाइक देयर आर टू कंडीशंस कि वो एट द बिगिनिंग भी हो, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ कंजक्टिव, SECU, ठीक है, कंजक्टिव लाइन्स, कि वो सिर्फ एक दफा रिपीट, लाइक एक दफा कैसे रिपीट हो सकता है, मतलब वो कंजेक्टिव लाइंस में आपके पास वर्ड्स या फ्रेजेस रिपीट हो रहे हो, वो भी हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। रिफ्रेन जो है क्लास, वो आपके पास वर्ड या फ्रेज या लाइन भी इवन रिपीट हो सकता है, बट मोस्टली एट द एंड। So this is basically the major difference usually come from the means, yes, आपके सिर्फ पॉइंट से, ठीक है, आपके सिर्फ जो है ना टेक्स्ट, वो उन्हीं में से आएंगे, ठीक है, डोंट गो फॉर द अनसीन स्टैंजेस। अच्छा, सो ठीक है, गुड एग्जांपल। अब हम एग्जांपल्स को जरा गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट सपोज एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं क्लास, ही क्राइड एंड राइट। अब मतलब, या आप लोगों ने एक और सेंटेंस कर लेते हैं कि नेवर नेवर गिव अप, मतलब हम रिपीट करें और हम एक एम्फेसिस बेसिकली किसी भी वर्ड पर पुट करें, ठीक है। पहला वाला जो है वो हम रिपीट करें इन समहाउ इन द मिड, जो दूसरा वाला हम रिपीट करें समहाउ एट द स्टार्ट रिपीट करें, लेकिन ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में वी आर रिपीटिंग टू वर्ड्स, ठीक है। सो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन। अगर हम एनाफोरे की बात करें क्लास, फॉर एग्जाम्पल एवरी डे, ठीक है, आपको मैंने कहा था एट द स्टार्ट, ठीक है, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं इसको, आई थिंक ऑफ यू। मतलब कि हमारा कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, एवरी, और वो हर, यस गुड फाइजा, हर 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 सेंटेंस के स्टार्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर वो स्टार्ट में रिपीट हो रहे हैं तो इट इट मीन्स के ये हमारा हो जाएगा एनाफोर, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी वो है रिफ्रेन की, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो आपके वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं समहाउ, या लाइंस भी हो सकते हैं, वो आपके टेक्स्ट के लास्ट में रिपीट हो, लास्ट में रिपीट हो, ठीक है। जिस तरह बहुत ही फेमस पोएम है क्लास, एंड आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है। दोबारा ये लाइन रिपीट होती है, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो मतलब के बिफोर आई स्लीप और बिफोर आई स्लीप स्लीप बेसिकली रिपीट हो रहा है, बट एट द एंड, ठीक है। आप लोगों ने प्लेसमेंट देखनी है कि वो स्टार्ट में रिपीट हो रहा है या वो लास्ट में रिपीट हो रहा है, तो यस, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन। समझ आ रही हूँ क्लास, जल्दी से बताएंगे।
Got it? Next is class imagery. ठीक है. अब like if we talk about its definition, so um हम ये कह सकते हैं कि this is a type of the poetic device in which we use five senses. इन विच वी यूज फाइव सेंसेस. अब वो फाइव सेंसेस कैसे हम यूज करते हैं, तो हम आज इसको डिफरेंट, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी गो थ्रू करेंगे. देखिए, नाइन्थ और टेंथ में ना, सिर्फ नाइन्थ और टेंथ तक आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन वाज इनफ. लेकिन अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में इमेजरी की डिफरेंट टाइप्स है. अगर फाइव सेंसेस हैं, लाइक द थिंग्स वी सी, द थिंग्स वी टच, द थिंग्स वी हियर, ठीक है, द थिंग्स बेसिकली दैट वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट, तो ये सारे आपके सेंसेस में आ जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दो सेंसेस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरीज. अब आपके पेपर में टाइप्स ऑफ इमेजरीज मोस्टली आ जाती हैं. सिर्फ ऐसे नहीं आ सकता कि आपको कोई एग्जांपल गिवन हो, सेंटेंस गिवन हो और आप लोगों से पूछा जाए कि जी आइदर इट इज पर्सनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर एंड एक्स वाई जी, एनी टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस. टाइप्स आपको गिवन होते हैं, कोई भी एक सेंटेंस गिवन होता है, ठीक है, और उसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि इसमें इमेजरी की कौन सी टाइप है. तो आज हम इमेजरी की बेसिकली टाइप्स को गो थ्रू करने वाले हैं कि अगर हम, हमारा ये पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली सेंसेस पर बेस्ड है, ठीक है, तो फिर उनमें डिफरेंट कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरीज होती हैं. अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी? इफ yes, in MCQs, Faiza, if repetition of both words are in the beginning, yes, of course, ठीक है. लेकिन both words हो और वो स्टार्ट में हो और वो सिर्फ एक ही लाइन में रिपीट हो रहे हैं मोस्टली, ठीक है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन. जिस तरह आपके वो पॉइंट है ना, ब्लो ब्लो दाउ वेंट, उसमें भी रेपिटेशन की यूसेज हुई भी है. ठीक है क्लास, सबसे पहले अगर हम इमेजरीज की टाइप देखें, सो उसमें हमारा, let me fill the marker class. ओके, सो अगर हम टाइप्स देखें, सो हमारी जो सबसे पहली टाइप है इमेजरी की, वो है विजुअल इमेजरी. ये इमेजरी नहीं है क्लास, इट्स इमेजरी. ठीक है, सो इसमें आप, विजुअल का मतलब होता है, हम कहते हैं ना विजुअल्स, ठीक है, तो ऐसे तमाम वर्ड्स को जो आप गो थ्रू करते हैं व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एनी टाइप ऑफ द टेक्स्ट. ऐसे जरूरी नहीं है कि पोइट्री में, ठीक है, सिंपल अगर किसी पैराग्राफ में भी आप किसी भी वर्ड को देख रहे हैं या किसी भी वर्ड को ऑफ कोर्स रीड कर रहे हैं और उसकी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, उसकी पिक्चर आपके, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ इमेज और पिक्चर माइंड में क्रिएट हो रही हैं. सो इट मीन्स कि दिस बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल इमेजरी. मतलब कि सिंपली अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स व्हाट वी सी. आप क्या देखते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेंटेंस सेंटेंस देख लें क्लास, के द स्पार्कलिंग स्टार्स फिल्ड द स्काई. अब देखिए, जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, राइट एट द मोमेंट जैसे ही मैंने ये सेंटेंस लिखा, आप लोगों के माइंड में लाइक पिक्चर क्रिएट हुई होगी स्टार्स की, स्काई की, ठीक है. स्पार्कलिंग मीन समथिंग विच इज शाइनिंग टू इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. तो स्पार्कलिंग मतलब आप, ऐसी चीज जो शाइन करती है वो भी समहाउ आपके माइंड में आई होगी अभी, ठीक है. सो इट मीन्स कि एक ही सेंटेंस में, यस द सन इज राइजिंग विद, यस गुड, एक ही सेंटेंस में वी आर क्रिएटिंग 3 to 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स इन आवर माइंड. ठीक है, सो इस टाइप ऑफ इमेजरी को हम कहते हैं विजुअल इमेजरी. द नेक्स्ट टाइप इज द नेक्स्ट टाइप इज tactile इमेजरी. अब टेक्टाइल इमेजरी ना आप लोगों ने ठीक याद रखना है, इट्स मीन्स टच. ठीक है, मतलब लाइक दिस टाइप ऑफ द इमेजरी इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लाइक जिनको हम टच करते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं. ठीक है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट वी फील.
अब ऐसा नहीं है कि व्हाट वी फील में आप कहें कि मैम ये तो फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो जाता है। लाइक फील इन द रियल सेंस, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि जस्ट सपोज अभी बोर्ड को मैं टच कर रही हूँ, सो आई कैन से कि इट्स सरफेस इज बेसिकली वेरी सॉफ्ट, क्योंकि आई एम टचिंग इट, मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि द रफ स्किन हर्ट्स मी, मतलब कि अगर मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ सो इट मीन्स के लाइक मुझे क्यों फील हो रहा है कि इट इज हर्टिंग मी बिकॉज द स्किन इज वेरी रफ। ठीक है, टेक्सचर की बेसिकली बात हो रही है। अगर हम ये कहें कि द आइस फेल्ट कोल्ड, तो आइस को मतलब टच करने के बाद हमें रियलाइज हुआ होगा कि इट इज बेसिकली कोल्ड। ठीक है, सो इन तमाम इमेजरीज को बेसिकली हम कहते हैं टेक्टाइल इमेजरी, जिनको आप टच कर सकते हैं और जिनको आप फील कर सकते हैं, जिनकी टेक्सचर्स को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज कैनेस्थेटिक इमेजरी। ठीक है, ये भी इमेजरी की एक टाइप है। अब इसमें क्लास आप लोगों ने याद रखना है, बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द मूवमेंट और एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द द लीव्स danced इन द wind। अब इसके लिए हम पर्सनिफिकेशन तो यूज करें, लेकिन हम लीव्स की बेसिकली मूवमेंट को डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द रिवर फ्लोड क्विकली। अब हम रिवर की मूवमेंट को बेसिकली डिस्कस करें। ठीक है, सो ऐसे तमाम इमेजरीज या ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिसमें हम हम ये भी कह सकते हैं क्लास के ही एंटर्ड इनटू द रूम या ही डाइव्ड इनटू द रिवर, मतलब एक पर्सन की हम मूवमेंट शो करें, वो भी आपकी कैनेस्थेटिक इमेजरी की एग्जांपल होगी। द चाइल्ड रेन टूवर्ड्स हिज मदर, मतलब हम उसकी मूवमेंट को डिस्कस करें। ठीक है, सो इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ कैनेस्थेटिक इमेजरी। समझ आ रही है क्लास, जल्दी से बताएंगे। द रिवर, यस गुड, फ्लोइंग स्मूथली, गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अगेन द सेकेंड वन इज सॉरी, आई थिंक इट्स द थर्ड वन, ऑडिटोरी इमेजरी। ठीक है, ये बेसिकली क्लास दिस टर्म बिलोंग्स टू बायो एज वेल। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ा होगा तो वहां आप लोगों ने ये टर्म पढ़ी होगी, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब्स व्हाट वी हियर, मतलब साउंड्स, वॉइसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन laughed laughed हैप्पी। अब ऐसा भी नहीं हो सकता क्लास कि आपको ये सेंटेंस गिवन हो और आपको विजुअल इमेजरी का भी, क्योंकि चिल्ड्रन की पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है। ठीक है, और साथ ऑडिटोरी इमेजरी का भी आपको ऑप्शन गिवन हो, ऐसा नहीं होता। फिर आप लोगों ने देखना है कि लाफ मीन्स आवाजें आप सुन सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज साउंड से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है, सो इट मीन्स के वो आपके पास रिलेटेड टू द सेंस ऑफ हियरिंग आ जाता है। ठीक है, द बर्ड्स या द लीव्स आर रस्लिंग। ठीक है, जब विंटर सीजन में लीव्स ड्राई हो जाती हैं, उन पर जब आप जाते हो तो वो एक स्पेसिफिक साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस साउंड्स को आप कहते हैं रसलिंग ऑफ लीव्स। तो वो हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत खामोशी हो, साइलेंस हो, तो उनको हम सुन भी सकते हैं, मतलब एक वो वॉइस और साउंड बेसिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हो जाती हैं आपकी ऑडिटोरी इमेजरी की। अथर, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा? Yes, good, Pfizer. The rustling of leaves was moving. Good. ठीक है. Then we have
olfactory imagery. ठीक है, this type of imagery is something basically which belongs to the sense of smell. ठीक है, जिसको आप जिसकी बेसिकली आप यूजिंग, ठीक है, योर बॉडी पार्ट नोज, जिसको आप स्मेल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्मेल ऑफ रेन मेड माई नर्व्स इजी। ठीक है, अब लाइक रेन को आप अगर हम करें तो मीन्स के हम ये उनको उसको स्मेल करने के बाद हम ये बात करें तो हमारा जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो यूज हो रहा है। ठीक है, द हम कहते हैं ना द सेंट ऑफ परफ्यूम इज, ठीक है, इज ओके। ठीक है, जो भी, सो सेंट ऑफ परफ्यूम मतलब वी आर यूजिंग दिस सेंस बेसिकली यूजिंग आवर नोज। तो इस टाइप ऑफ इमेजरीज को बेसिकली हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ठीक है, सो क्लास दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द क्लास। मैं लाइक 5 पर आप लोगों को एक दोबारा एक लिंक भेजूंगी, सो यू हैव टू ज्वाइन दैट। ठीक है, क्योंकि आप लोग की इस्लामियात की आज क्लास नहीं होगी। ब्राइटन्स माय डे, यस गुड। बल्कि इसकी 2 टाइप्स रहती हैं, वो हम कवर कर लेते हैं फिर उसके बाद हम, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम बाकी फिर स्टार्ट लें। अच्छा जी, उसके बाद जो सेकेंड लास्ट इमेजरी है दैट इज कॉल्ड एज गस्टटोरी इमेजरी। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों से भूल जाए तो आप लोगों ने ये थर्ड लेटर याद रखना है, इट्स मीन्स के टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में भी एस है और गस्टोरी में भी एस की यूसेज है। सो आप लोगों ने यहां से याद रखना है कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट वी टेस्ट, जी ऐसी तमाम चीजें जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि द मेडिसिन वॉज बिटर। अब आप लोग कहेंगे मैम मेडिसिन तो विजुअल इमेजरी की भी एग्जांपल हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन की पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वो हो सकती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ आप टेस्ट की भी तो बात कर रहे हैं ना, कि वो बिटर है, वो लाइक उस वो स्वीट नहीं है। सो इट्स मीन्स कि अगर आप टेस्ट की बात करें सो इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ गस्टटोरी इमेजरी। ठीक है, या हम ये कहें कि द मैंगो टेस्टेड स्वीट। अगेन हम एक एक जायके की बात करें, एक टेस्ट की बात करें, सो इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ गस्टटोरी इमेजरी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास लेकिन कभी कभार पेपर में आ ही जाता है, सो आप लोग को पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक इमेजरी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इट डिस्क्राइब्स इंटरनल इमोशंस। ठीक है, इंटरनल इमोशंस में आपके क्या क्या आ जाएंगे जी, आपका फियर आ जाएगा। ठीक है, आपका लाइक हंगर कैन बी द एग्जांपल, पेन। ठीक है, एक्सेट्रा जितने भी आपके इंटरनल इमोशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जी ही फेल्ट अ वेव ऑफ सैडनेस। अब सैडनेस इज समथिंग लाइक विच वी कैन फील इंटरनली ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ही वॉज filled with joy। अब हैप्पीनेस इज समथिंग विच वी कैन फील इंटरनली, मतलब एक्सटर्नली हम इसको बेसिकली समहाउ प्रेजेंट फील नहीं कर सकते। सो ऐसे तमाम इमोशंस जिनको इसमें एंजाइटी आ जाती है, इसमें हंगर आ जाता है, इसमें लाइक सैडनेस आ जाता है, डर आ जाता है, वीकनेसेस आ जाती है, सब कुछ जो हम इंटरनली फील करते हैं, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक इमेजरीज, यानी कि इंटरनल फीलिंग्स। So class, all the types of the imageries are clear? Let me know जल्दी से, जल्दी से बताएं क्लास। ओके, अच्छा, लाइक
5 पर मैं दोबारा आप लोग को लिंक भेजूंगी। सो आप लोग की 5 के बाद कोई क्लास है आज? फ्रॉम 5:30। ठीक है, सो हम आज बायोटिक डिवाइसेस वी वुड बी ट्राइंग के हम इसको कवर करें। सो मस्ट जॉइन द लिंक देन। ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स।